Hello and welcome to the YG Learning. In previous class, we have discussed some important chapters of the Vision IAS PT 365. Now we will proceed ahead. First of all, what we have discussed? We have discussed the legislature and and parliament. We have discussed the parliament and state legislature. Now we will discuss the important chapters which will be judiciary, right? So, what is the judiciary? First of all, we have to discuss it. In India, we have followed the judiciary system. Which kind of judiciary system? That is the integrated system of judiciary. But before we will discuss something like we have discussed 50 years of national emergency, assent to state bills, office of vice president, speaker of Lok Sabha, anti-defection law, disqualification of a sitting lawmaker, removal of ministers upon detentions, right? Then parliamentary committees we have discussed, local bodies, Panchayat Advancement Index and Model Youth Gram Sabhas. Then other important news like official languages which will be which are in the constitution of article 343, right? And key terms initiatives in news recently, that is money bill and finance bill. Money bill 110 articles and finance bill 117 articles, right? Private members bills, like who can introduce private member bills? Anybody who is not a minister can introduce the private member bill. In private member bill, the private member must initiate a notice before 30 days, right? Then adjournment signed by 0 hour, question hour and national e-vidhan application we have discussed, that is the NEVA. And second topic, what was the important constitutional statutory executive bodies in India? We have discussed in this Lokpal, Central Bureau of Investigation, that is the Union Public Service Commission, that is the constitutional body, National Crime Records Bureau statutory body, National Human Rights Commission, that is the statutory body, National Standards of for Civil Service Training Institute, NSCLT, other important bodies in news like KEG, Attorney General of India, National Commission for Backward Classes, and National Medical Commission for National Medical Commission. And issues related to the Constitution. In issues related to the Constitution, we have discussed the preventive detention. In which article of the Constitution? Article 22. And personality rights about the Delhi High Court case phone tapping, who can order for the phone tappings and related issues we have discussed. Constitutional validity of narco text and issues related to Article 21 like digital access, digital access is a right of matter, right? Now, after that, today we will discuss about the judiciary. क्या डिस्कस करेंगे आज? जुडिशरी. Now today we will discuss about the judiciary, and what will be our first topic according to this magazine will be the Chief Justice of India and Chief Justice India and appointment and removal of judges. Then ट्रिब्यूनल्स कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इन सब चीज़ों के डिस्कस करेंगे. लीगल एड इन इंडिया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, एडीआर other than the courts, right? Then key terms initiative in is like doctrine of merger and zero FIR. You should know about the zero FIR. क्या होती है जीरो FIR? Anybody? ठीक है. I hope you have got all the points till here. Now we will move forward for the. Now we will discuss the judiciary, and judiciary, the higher judiciary like Supreme Court. According to the Constitution, Article 124 establishes the Supreme Court of India. Supreme Court in India, right? And if Supreme Court is establishing the constitutional court in India, so what are the related things to it? We will discuss here, like why Supreme Court was in the news. All the things will be discussed here. Okay. So first of all, before discussing the Supreme Court, we have to keep in mind some important things. First, न्यूज में इसलिए था क्योंकि हमारे जो जस्टिस गवाई,
that is B.R. Gavi. Took oath, अभी कौन है? As 52nd CGI. और अभी प्रेजेंट में कौन है? सूर्यकांत. वो जाएंगे 53rd CGI ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड न्यूज जो कंटेक्स्ट था वो पुराना वाला ही था, क्योंकि ये अभी अपन एक साल की कवर कर रहे थे, एक साल में 2 CGI बदल चुके हैं, तो इट वाज द न्यूज, राइट. जस्टिस गवई वी हैड टू ओथ एज 52nd CGI, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द सूर्यकांत who is present CGI of India, right. And if he is the present CGI of this High Court, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है वो कौन होता है? कौन बता सकता है यहाँ पर? लाइक हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. कौन होगा सुप्रीम कोर्ट का? एनीबडी इन द चैट सेक्शन, प्लीज रिप्लाई. तो ध्यान रखना CGI नहीं होगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट का, बिकॉज ही इज द जुडिशियल ऑफिसर. तो कौन होगा? ये होगा रजिस्ट्रार जनरल. रजिस्ट्रार जनरल. शांति बनाए रखे, क्लास चल रही है. Who will be the highest administrative officer of the Supreme Court? Will be the Registrar General. I hope you got the points. And some very important things which are required for the men's perspective we have to discuss here, like सबसे पहले बात करते हैं अपन CGI की. आर्टिकल 120 क्लोज 4 बात करता है CGI की. देयर शैल बी ए Supreme Court and a CGI consisting of a CGI Chief Justice of India and not more than 33 judges. तो सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जज हैं? 34, इंक्लूडिंग द CGI को अगर अपन इंक्लूड करते हैं तो 34 जजेस ही मिलेंगे. ठीक है. एंड अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? आर्टिकल 124 बात करता है अपॉइंटमेंट्स की. किन के अपॉइंटमेंट्स की? अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस. तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होती है, बट हियर इज अ very concept which is the collegium, and we will discuss collegium in the later classes because it is part of our current affairs segments, and here we are not discussing the details things of the constitution and polity of India. ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, अभी करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं खुद रेगुलर क्लास ले रहा हूँ पॉलिटी की, तो वहाँ पे अपन कॉलेजियम डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स. ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक डिस्कस करेंगे ताकि यू कैन गेट क्लियरिटी ऑन द कॉलेजियम सिस्टम, राइट. प्रेसिडेंट कब करेगा? जब कंसल्टेशन होगा CGI के साथ. कंसल्टेशन ऑफ CGI, उसके बाद ही डिस्कस किया जाएगा. ठीक है. एंड जो और कौन CGI कौन होगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सीनियर मोस्ट जज ऑफ SC. ठीक है. जो सीनियर मोस्ट जज होगा SC का वही CGI भी होगा, उसी को CGI बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एज पर द मेमोरेंडम प्रोसीजर यूनियन लॉ मिनिस्टर फर्स्ट सीक रिकमेंडेशंस ऑफ आउटगोइंग CGI, देन फॉरवर्ड इट टू द PM हु देन एडवाइजेस द प्रेसिडेंट, राइट. अब जो टेन्योर होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 ईयर्स होती है, मैक्सिमम ईयर्स. जैसे वो 65 ईयर्स के होते हैं दे विल रिटायर. If they retire at the age of 65 years of age,
एंड हाई कोर्ट में सेम चीज कितनी की हो जाएगी, 62 साल की। इन हाई कोर्ट्स इट विल बी 62 ईयर्स। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। एंड इट वॉज इन द न्यूज, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर, अदरवाइज देयर इज नथिंग इम्पोर्टेंट हियर, ठीक है। एंड ओथ कौन एडमिनिस्टर कराएगा इनकी, ओथ एडमिनिस्टर की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट। If oath is administered by the President of India or nominated by the President of India, and the fact which is related to the pilgrim's perspective will be here, like first CGI of India, first CGI of Chief Justice of India. Who was the first CGI? Harilal Jaikania. Keep it in mind. He was the first CGI of India, ठीक है। सिक्योरिटी क्या है कि भैया ऑफिस ऑफ सीजीआई फॉल्स अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 राइट नाउ, एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, ओवरसीज द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टाफ, दिस इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीजीआई, मास्टर ऑफ द रोस्टर, मतलब टू डेजिग्नेटेड द केसेस एंड द बेंचेस, ऑन विच बेंच द constitutional bench, who which kind of benches will see the case, whether it is constitutional case or it is a normal case, okay, or it is a case based on the advisory jurisdiction, like master of the roster. These are the responsibilities of CGI, master of roster। ये master of roster से related EPFO में कुछ क्वेश्चन आया था 2025 वाली एग्जाम में, तो मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन था। एंड द स्टेटमेंट विच इज इंक्लूडेड द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन इंडिया, इट वाज आल्सो इन द ईपीएफओ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एंड हेड ऑफ द कॉलेजियम, हेड ऑफ द कॉलेजियम, साथ में क्या होगा, वो हेड भी होगा किसका, कॉलेजियम का। एंड जो अपना performs various duties like administering oath and appointing judges, all the things are discussed by CGI, that is the Chief Justice of India, correct? And we will discuss some other things. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। मतलब कि कोई जज है वो रिटायर हो चुका है, जस्ट सपोज ए नाम का रिटायर हो चुका है, नाउ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ जजेस, what CGI do, CGI call this जज बिफोर कंसल्टेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके उस जज को बुला सकता है कोर्ट में। इनको बोलते हैं एडॉक अपॉइंटमेंट्स, व्हाट वी कॉल देम तदर्थ प्रतिनियुक्तियां, नियुक्तियां, तदर्थ मतलब एडॉक अपॉइंटमेंट्स। But this is also this is the issue itself is broad, we will discuss in the men's classes, okay। and here we are discussing the PT, so stick to the PT only, ठीक है। now अब जो अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल प्रोसेस है ऑफ द जजेस, अपॉइंटमेंट एंड removal process of the judges। देख अपॉइंटमेंट प्रोसेस तो सिंपल सी बात है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है आफ्टर द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनली कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। तो सबसे पहले न्यूज में क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि 2 नए जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 34 जजेस दैट कैन बी फुलफिल्ड, ओके। सो व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, दैट इज द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम होता क्या है,
कुछ नहीं होता बेसिकली, एक तो सीजीआई होता है और 4 प्यूनी जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के लिए एक ग्रुप होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन से जज को वो अपॉइंटमेंट करने वाले हैं एज ए सीजीआई और एज ए जज। ओके, एंड ये किसको रिकमेंड करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसी व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसकी जो कॉलेजियम का जो जेनेसिस था, वो जेनेसिस अपन देखते हैं 3 केसेस हुए हैं इससे रिलेटेड। एक तो फर्स्ट जज केस हुआ था 1981, जिसको अपन एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में क्या होता कि भैया सीजीआई को, मतलब कि क्या कहते हैं, जो कोर्ट रूल दैट रिकमेंडेशन मेड बाय सीजीआई टू प्रेसिडेंट कैन बी रेफर्ड फॉर कंजेंट रीजंस देयरबाय गिविंग ग्रेटर वे टू एग्जीक्यूटिव। मतलब कि क्या कहते हैं, जो सीजीआई का कंसल्टेशन है उसको सिर्फ एज अ एडवाइजरी ही माना जाए, नॉट बाइंडिंग। मतलब कि एग्जीक्यूटिव के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। हाँ, अगर सीजीआई ने बोल दिया कि इसको करो, हो सकता है एग्जीक्यूटिव इसको माने या नहीं माने, हो सकता है किसी और को सीजीआई नियुक्त कर दे। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे जस्टिस खन्ना वगैरह जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको बाईपास करके दूसरे जजेस को अपॉइंट किया गया था। तो इसी वजह से ये केसेस हुए थे और उसी वजह से कॉलेजियम का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, तो जो फर्स्ट जज केस था 1981, फर्स्ट जज केस 1981, इसमें क्या कहता, अपर हैंड दे दिया था किसको? एग्जीक्यूटिव को। अपर हैंड टू एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, एंड सेकेंड, उसके बाद में हुआ था फिर सेकेंड जज केस। अब सेकेंड जज केस का क्या लेना देना इससे? सेकेंड जज केस का मतलब था, या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है, सीजीआई ओनली नीड टू कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। मतलब कि सीजीआई जो उसके सीनियर मोस्ट प्यूनी जजेस हैं उनको ही कंसल्ट करेगा और द ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ये था, समझ में आ गया। एंड उसके बाद में थर्ड जजेस केस में वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई शुड कंसल्ट, मतलब कि इसमें 4 प्यूनी जज हो गए। प्यूनी जज का मतलब होता है जो सीजीआई है उससे जस्ट सीनियोरिटी के मामले में 4 नीचे के जज, मतलब कि क्या कहते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम सीजीआई हो गया, सीजीआई से सीनियोरिटी में नीचे कौन होगा? फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, मतलब कि सीनियर 5 जजेस, और उसमें एक सीजीआई है ही अपने आप में। ठीक है, टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। तो सीजीआई 4 प्यूनी जजों से कंसल्ट करेगा, किसके लिए कंसल्ट करेगा? अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस, अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। ये 3 केसेस हैं बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। एंड आज भी वही सेम प्रैक्टिस चली आ रही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में एनजेसी एक्ट लागू करने का प्रयास किया था। एनजेसी एक्ट लेके आई थी, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की कोशिश की गई थी 1999 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, नल एंड वॉइड। सो इफ इट इज नल एंड वॉइड देन इट इज इन डोरमेंट पोजीशन, नन ऑफ यूज ऑफ इट। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इसको वापस पुनः रिवाइव करने की अटकलें चल रही हैं, डिबेट्स चल रही हैं। देयर शुड बी एनजेसी लाइक institution who will appoint and transfer of the judges, because collegium system itself in a very opaque system. No one knows how decisions were made, on what basis decisions were made. There is only one thing we know about that: seniority. If someone is senior from the others, he will be a CGI of CGI. And what if CGI is competent or not competent? Like there are kind of some questions which must be risen before the collegium systems, and we have to ask the questions for establishing transparency, accountability and responsibility in the system. Okay, and जो प्रोसेस है मैं समझाता हूँ एक बार। पहले तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम मैंने बता दिया।
It is a system of senior most judges to recommend appointments of judges and transfer of the judges. And सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, एक तो सीजीआई होता है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में, एक तो सीजीआई होता है, सीजीआई प्लस 4 प्यूनी जजेस। ठीक है, हाई कोर्ट में क्या होगा, एक तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा एंड 2 अदर प्यूनी जजेस होंगे। ठीक है, फाइनल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अच्छे से। और अपन यहाँ पे एक आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आर्टिकल 124 क्लोज 4, जो बात करता है रिमूवल ऑफ जजेस। रिमूवल ऑफ जजेस मतलब कि न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है फ्रॉम दी जज। तो इसमें सिर्फ ध्यान रखना ग्राउंड्स क्या है, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में सीधा ग्राउंड्स को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिमूवल ऑफ जजेस हैं। रिमूवल ऑफ जजेस कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट, उनका ग्राउंड क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर। अब मिसबिहेवियर के अंदर क्या कह सकता है, करप्शन हो सकता है। जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे, उनके घर पे जले हुए केस मिला था, बहुत सारा आग लग गई थी, केस जल गया, पूरा जला हुआ केस मिला था, तो उनके ऊपर भी महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से उनको हटाने की कोशिश की गई थी। ऑल्दो फाइनली उनको हटाया नहीं गया, अभी तक कुछ प्रोसेस बाकी है। एंड इनकेपेसिटी, इनकेपेसिटी का मतलब वो जज अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। देयर कैन बी सम रीजंस फॉर द इनकेपेसिटी लाइक ही इज ill or he has some mental unstable things, like which can be anything, right? These are the two grounds, first proven misbehavior and second is the incapacity. In those grounds the judge of the Supreme Court can be removed by the procedure like impeachment. Okay, article 124 clause 5। अब ये पावर्स की बात करता है, किसकी पावर्स की बात करता है, पार्लियामेंट की पावर्स की बात। तो पार्लियामेंट्स की पावर्स के बारे में बात करता है। टू रेगुलेट प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड अ प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ ए जज अंडर क्लोज 4। तो इसके लिए क्या कर रखा है, इस आर्टिकल 124 क्लोज 5 का उपयोग करते हुए पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है। कानून कौन सा बना रखा है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 124 क्लोज 5, क्योंकि आर्टिकल 124 क्लोज 5 पार्लियामेंट को पावर देता है ऐसा करने की। इसी वजह से पार्लियामेंट ने किया है। पार्लियामेंट ऐसे नहीं है कि हवा में कुछ भी बना देगी। there is clearly defined powers provided by the Constitution of India to Parliament of India. Okay, now the अब अपन यहाँ पे एक और आर्टिकल है 217 क्लोज 1 डील्स विद द रिमूवल ऑफ जजेस हाई कोर्ट। क्योंकि हाई कोर्ट्स के बारे में अपन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको सिंपल सी बात है स्किप कर देते हैं। 218 एक्सटेंड्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 124 क्लोज 4 एंड आर्टिकल 124 क्लोज 5 टू हाई कोर्ट्स। नो जज हैज बीन रिव्यूड अंटिल नाउ। ये बात ध्यान में रखनी है तुम्हें कि आज तक इस प्रोसेस से को किसी एक भी जज को हटाया नहीं गया, क्योंकि पार्लियामेंट जैसे ही इंपीचमेंट जैसी प्रोसेस शुरू करने की कोशिश करती है तो जज क्या कर देता है, रिजाइन दे देता है। तो सिंपल सी बात है, प्रोसेस पूरी नहीं होती उससे पहले ही अगर जज ने रिजाइन दे दिया तो इस प्रोसेस से एक भी जज हटाया नहीं गया है, ध्यान रखना। नो वन हैज बीन रिमूव्ड टिल टुडे। बाय दिस प्रोसीजर, ठीक है, कीप इट इन माइंड, keep it in mind. Constitution does not use the term impeachment for removal of judges. ये भी ध्यान रखना। It is colloquially used to refer to proceedings under Article 124 and Article 218. Judges Inquiry Act 1968 regulate procedure relating to the removal of Supreme Court judges by process of impeachment. ठीक है।
हाउ ए जज इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस इंडिया। सबसे पहले तो इनिशिएशन का मोशन होगा, तो सिंपल सी बात है, मैं प्रोसीजर यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसीजर, सबसे पहले तो क्या आएगा भैया, उसके खिलाफ ए मोशन इज साइंड बाय 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा मेंबर्स। मोशन आएगा, मोशन लेके आएंगे, या तो लोकसभा, अगर लोकसभा में है तो 100 एमपी उसको साइन करेंगे, और अगर राज्यसभा के अंदर है तो 50 एमपी इनफ है, क्योंकि राज्यसभा की स्ट्रेंथ कम होती है राज्यसभा से, सिंपल सी बात है। अब फिर इसके बाद में एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के मामले में भी बनाई गई थी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ये सब चीज़ें अगर आप न्यूज़ पढ़ते रहो ना तो सारी वैसे ही हो जाएगी। और ये 3 मेंबर कमेटी होगी, जो चार्जेस लगे हैं जज के ऊपर उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उसके बाद में पार्लियामेंट्री, द मोशन मस्ट पास इन बोथ हाउसेस विद अ स्पेशल मेजोरिटी। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल का मतलब है जो मोशन लाया गया था वो दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, राज्यसभा एंड लोकसभा में। जैसे ही पास हो जाता है उसके बाद में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल क्या आएगा, फाइनल ऑर्डर होगा फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंट इशूज द ऑर्डर ऑफ रिमूवल, द फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल, फाइनल ऑर्डर of removal. These are the procedures for the removal of the Supreme Court judge, and you have to keep in mind there can be some questions related to it because it was in the news, almost it was news in the 2 months, and if it is news in since for 2 months, then definitely there is more chances for asking questions related to this topic in prelims are higher. Okay, and जो इससे related news थी वही थी, President appointed 14 advocate and additional judge of Bombay High Courts. About additional judges appointments under Article 224, time period not exceeding 2 years shall be held till the age of 62 years. सारी चीजें ये चीजें पढ़ लेना, which are the factual in the most district judges होंगे, and 7 years of experience allowed कर दिया, उसके बाद ही district judge बन सकता है कोई, and it held that Article 233 permitted both advocates and in service candidates to be appointed as a district judges and extend the criteria of 7 years practice to judicial officers as well. Correct, appointment and district of judges, तो आर्टिकल 233 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, आर्टिकल 233 से 237 के आसपास है, विच आर मोस्टली अबाउट द डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड, ठीक है। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस का रहता है, ठीक है ना। एंड ट्रिब्यूनल्स, and now we will discuss about the tribunals. Tribunals, you know about tribunals? Tribunals, सबसे पहले ट्रिब्यूनल्स होता क्या है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। जो भी पता है, कुछ भी पता हो तुम्हें ABCD ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताना चाहिए। इससे क्या होता है, तुम्हारी मेमोरी बढ़ेगी, तो तुम्हें चीज़ें याद रहने लगेगी, बार बार किसी चीज़ को एक्सप्रेस करोगे जो चीज़ याद है तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज में क्या होती है भैया। सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस एंड मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स की पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना रखा था, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021, उसको क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, स्ट्रिक डाउन कर दिया है, नल एंड वॉइड कर दिया है। इस वजह से ट्रिब्यूनल्स आर इन दी न्यूज। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन कि ट्रिब्यूनल सिस्टम इंडिया के अंदर, ट्रिब्यूनल सिस्टम बेसिकली अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म तो नहीं है, बट क्या होता है ट्रिब्यूनल्स के अंदर स्पेशलिस्ट लोगों को होता है, जो स्पेशलिस्ट लोगों को बिठाया जाता है जिनका काम वही है जो कोर्ट करता है। कोर्ट क्या करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स का, डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम ये भी करती है, बट हियर आर सम स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स अलग से हो गया, ITIT ट्रिब्यूनल्स, तो इनकम टैक्स में जो एक्सपर्टीज लोग हैं उनके द्वारा ही चलाई जाती है, उसमें उन्हीं को बिठाया जाता है। तो
जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, एनवायरमेंट से रिलेटेड इशूज हैंडल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी एक्सपर्टीज है नहीं एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करने के लिए। इसके लिए अलग से एक एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स बना रखा, वेयर obviously then definitely some retired judges in the tribunals are also appointed, but with it there must be some experts in the environments and ecology who are doing their job. Okay, तो ट्रिब्यूनल का जेनेसिस इंडिया में हुआ कब था? तो सबसे पहले तो फर्स्ट एआरसी, जो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, कब आया था? 1969 में रेकमेंड किया था देयर मस्ट बी ट्रिब्यूनल्स फॉर सम स्पेसिफिक इश्यूज और स्पेसिफिक सेक्टर्स, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या होता है, 42nd में अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक साथ कर दिए थे जितने कभी नहीं हुए, तो इसी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या हुआ, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप की, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अगर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स सेटअप किए बेस्ड ऑन स्वर्ण सिंह कमेटी, बेस्ड ऑन स्वर्ण सिंह कमेटी। अब स्वर्ण सिंह कौन था? तुम्हें पता होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी तुमने, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में रिकमेंड देने वाला था वो सरदार स्वर्ण सिंह, वही सेम सरदार स्वर्ण सिंह है, बेस्ड ऑन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अरे यार क्या हो गया, बेस्ड ऑन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अगर आप लोग कहें तो मैं क्या कर सकता हूं, जो अपन पढ़ रहे हैं पीटी 365, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पीटी 365 से, उन क्वेश्चनों को बना के एक सेशन लूँ यूट्यूब पे, जिसमें सारे जितने भी क्वेश्चन इस पीटी 365 से बनेंगे, अपन उनको सोल्व करेंगे, साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी होगी आफ्टर डूइंग दिस रिवीजन, राइट। अगर लगता है ऐसा किया जाना चाहिए देन यू मस्ट कमेंट ऑन दी यूट्यूब सेक्शंस इफ आई अपलोड दिस ऑन दी यूट्यूब, ठीक है, ओके। तो ये क्या तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली, इफ आई अपलोड सम क्वेश्चंस इट विल मेक्स क्लियरिटी इन योर माइंड एंड यू विल बी able to remember all the facts and all the concept which is related to the constitution, polity and governance, okay। उसके बाद में फाइनेंस एक्ट 2017 रीओरिजिनेटेड ट्रिब्यूनल्स रिड्यूसिंग देयर नंबर फ्रॉम 26 to 29, जो भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 323 है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस के अंदर कौन से आर्टिकल्स है जो बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में? तो सबसे पहले बात करते हैं 323 है। 323 है कौन सी ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है? ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। And if it is talking about the administrative tribunal, then there must be a article 323B, tribunals for other matters, ठीक है। एंड आप लोगों ने कैट पढ़ा होगा, एक कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, कैट सर्विस मैटर्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द यूनियन एंड द इट्स अथॉरिटी। जुरिस्डिक्शन क्या होती है? डिफाइंड सब्जेक्ट वाइड, सम ट्रिब्यूनल्स हैव एपलेट जुरिस्डिक्शंस, मतलब कि अगर ट्रिब्यूनल ने कुछ वर्डिक्ट दिया है एंड यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिसीजन, यू कैन अपील it further on the appellate jurisdictions. Appeal lies with the high courts, in some cases directly to the supreme court, ठीक है। now difference between the tribunals and courts, but जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वही चीज, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स को क्या है, बाय एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स के थ्रू। तो डिफरेंस के लिए अपन दूसरे पेज में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे
and we will discuss the difference. Are you ready? Difference between tribunals and courts. तो यहाँ पर अपन लाइन खींच लेते हैं क्योंकि it will be easy for us to maintain all the things, right? प्लीज शांति बनाए रखे बच्चों, ठीक है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है, किनका एस्टेब्लिशमेंट है? अपने ट्रिब्यूनल्स का। ट्रिब्यूनल्स का एस्टेब्लिशमेंट, राइट। ट्रिब्यूनल्स का एस्टेब्लिशमेंट होता है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट। एक लाइन और खींचनी चाहिए थी अपन को, एस्टेब्लिशमेंट। एक लाइन और खींच लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिर्फ अपन को ये ले, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स। यहाँ पे लिख देते हैं कोर्ट, ठीक है। एक लाइन और खींच लेते हैं। Now let's discuss something which is important. फीचर्स बेसिकली है, तो इसको वापस यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट लिख देना। एस्टेब्लिशमेंट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो 323 है, 323 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये याद रखने की चीजें हैं, जो कि 323 एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए है, 323 अदर मैटर्स के लिए। ये भी 42nd के तहत ही ऐड किया गया था, जो पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। एंड साथ में किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, ये ध्यान रखना, सरदार सोनू सिंह कमेटी के द्वारा। एंड जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स को डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, ओनली। ये ध्यान रखना अच्छे से। नाउ जो फर्स्ट वाला हो गया अपना एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंस के मामले में। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड थिंग ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होगा, पर्पज। इनका पर्पज होता क्या है? टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स ऑन स्पेसिफिक मैटर्स, फोकस ऑन स्पेसिफिक मैटर। जो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, फोकस ऑन स्पेसिफिक मैटर। एंड यहाँ पे बाउंड बाय प्रोसीजरल ऑर्डर। बाउंड बाय प्रोसीजरल ऑर्डर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन टेल मी in the comment section which kind of doubts you have in these topics. I will try to solve every questions of yours. Okay. members में क्या होता है, जुडिशली भी, जुडिशियल भी हो सकते हैं एंड अदर्स भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल रहेंगे, जुडिशियल ओनली, ठीक है। एंड पावर्स क्या है, लिमिटेड अंडर लॉज, लिमिटेड अंडर लॉज। पावर टू यूज ऑल इनेक्टेड लॉज बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, किस किस के बीच में अंतर है, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स के बीच का अंतर अपन ने पढ़ लिया। एंड जो लीगल एड है, लीगल एड जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, विच इज द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 39 है। एंड वी डिस्कस बिफोर द लीगल एड फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो उससे पहले अब देखो भैया, यहाँ पे लीगल एड है। लीगल एड का मतलब होता है कानूनी सहायता।
तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है 39 है। ठीक है, इसके अंदर फ्री लीगल एड की बात कही गई है, फ्री लीगल एड की बात कही गई है। ठीक है, बाय दी वो 39 एक्ट किस कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत फ्री लीगल एड्स के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 23 आल्सो टॉक्स अबाउट द राइट टू फ्री लीगल एड एंड एज अ फंडामेंटल राइट इम्प्लिसिट इन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लीगल एड इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और अगर ऐसे आता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कैसे आएगा, फ्री लीगल एड is explicitly mentioned in the fundamental rights of the Constitution of India. So it is not a correct statement, it will be incorrect statement because legal aid implicitly mentioned in the fundamental rights of the Constitution of India in the Article 21 under right to life and personal liberty, right? And एक और स्टेटमेंट आ सकता है, लीगल एड एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन दी डीपीएसपीज, करेक्ट है, आर्टिकल 39A में क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स है जिनके बारे में अपन को ढंग से पढ़ना पड़ता है। और जो आर्टिकल 22 क्लोज 1 आल्सो रिलेटेड टू इट गारंटी द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू कंसल्ट एंड द डिफेंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज और हर चॉइस। और आर्टिकल 14 आल्सो है एंश्योर नो पर्सन इज डिनाइड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन इंडिया। ये सारी चीजें हैं जो कि अपन को याद रखनी चाहिए रिलेटेड टू। तो जो आर्टिकल 39 है उससे रिलेटेड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाने के लिए देयर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालसा। नालसा नालसा क्या है? लीगल सर्विसेज एक्ट 1987, इसके तहत नालसा अथॉरिटी बना रखी है जिसका काम ही क्या है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। आई होप समझ में आ रहा तुम लोगों को, बता देना भाई कुछ गड़बड़ हो तो भी, नहीं हो तो भी। ठीक है, अब क्या है कि भैया 3 टियर सिस्टम है नालसा का। 3 टियर सिस्टम कैसा है? 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम कैसे है? टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस। एक तो नेशनल लेवल पे होगी, कौन से लेवल पे होगी? नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे क्या होगी? नालसा। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं, नेशनल, ये तो होगी नालसा। ये हेडेड की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल लेवल पे, मतलब कि सीजीआई के द्वारा। एक होती है दूसरी स्टेट लेवल, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी SLSA, ये की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, SLSA एंड DLSA दैट विल बी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा हेड की जाएगी। मतलब कि 3 लीगल का 3 टियर सिस्टम बना रखा है। ठीक है, अब सेक्शन 341 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लीगल एड टू accused at state expense in certain cases where accused lacks the means for legal engagement। अब द गवर्नमेंट स्टेप टेकन फॉर लीगल एड क्या है? डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया लाइक दिशा स्कीम। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे दिशा स्कीम हो गया, टेली लॉ हो गया, न्याय मित्र प्रोग्राम हो गया, लोक अदालत होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो नालसा है, नालसा का कुछ चैप्टर है ना एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, एक पेज है पूरा, वो 11th जो कौन एनसीईआरटी का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल एथवर्क, उसमें दिया हुआ है। तो उसमें जाके नालसा पढ़ लेना, क्योंकि वहां से सिंपल सी बात है, बहुत बार क्वेश्चन उठे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में, और तो दोबारा पूछने के चांसेस हैं, और पूछती यूपीएससी। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं जो फ्री लीगल एड है। फ्री लीगल एड वो किन किन को मिल सकती है? लाइक हु आर द एलिजिबल फॉर द फ्री लीगल एड? तो एलिजिबिलिटी तो होती है हर चीज के लिए। तो पहला तो है वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। एंड सेकेंड है इंडस्ट्रियल वर्कमैन,
इंडस्ट्रियल वर्कमैन, इंडस्ट्रियल वर्कमैन के बाद में मेंटली इल और अदरवाइज डिसेबल्ड पर्सन, मेंटली इल एंड डिसेबल्ड पर्सन। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स के मेंबर्स, SC ST मेंबर्स। उसके बाद में विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, विक्टिम्स। देख इस पर क्वेश्चन आ चुका है फ्री लीगल एड के एलिजिबिलिटी के बारे में, आप लोगों ने अगर PYQ पढ़े होंगे तो पता होगा, तो इस चीज को ढंग से याद कर लेना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फ्री लीगल एड। ओके, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, जैसे वॉयलेंस हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो गया। पर्सन्स इन कस्टडी इन प्रोटेक्टिव होम, जो लाइक जुवेनाइल होम और साइकाइट्रिक हॉस्पिटल्स, मतलब कि जो जुवेनाइल होम्स में होते हैं, जुवेनाइल होम प्रोटेक्टिव कस्टडी, उनको भी फ्री लीगल एड दी जाएगी। प्रोटेक्टिव कस्टडी, ओके। नाउ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, क्योंकि बहुत बार क्या होता है इन ह्यूमन बीइंग्स और बेगास आर रेफर टू आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक करके लाया जाता है, फिर उनको प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह ऐसे धंधों में डाल दिया जाता है, एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लीगल हेल्प इफ दे वांट टू rid of these kinds of places. Okay, now finally, persons whose annual income less than amount prescribed by respective states government, if the cases is before court other than the Supreme Court and less than 5 lakhs, if cases is before the सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि कुछ केसेस में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट सेट कर रखा है, इतनी एनुअल इनकम से अगर आपकी इनकम नीचे है तो उनको भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। ये वेरी करता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, तो इतना याद करना है इसमें, ठीक है। एंड वी हैव डिस्कस द फ्री लीगल एड, इतना ही था न्यूज में। आप लोग को क्या करना है, फ्री लीगल एड को जाके आर्टिकल 39A को पढ़ना, 39A के बाद में 42nd अमेंडमेंट को पढ़ना, 42nd अमेंडमेंट के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल एट डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क, NCERT की कुछ NCERT की किताब है, उसमें नालसा के बारे में एक ब्रैकेट बना के बॉक्स बना के दे रखा है, उसको पढ़ना। मैं यहीं पे दिखा देता अभी, लेकिन कुछ क्या सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो इस वजह से दिखा नहीं पा रहा, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना अच्छे से, बेसिकली वही चीज़ है उसमें, एलिजिबिलिटी वगैरह है और एन नालसा की हिस्ट्री है, ठीक है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। समझ में आई, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा सबको। और साथ में स्मार्ट वर्क क्या है कि पूरी किताब लेके आए या हार्ड वर्क के अंदर ही आता है, PDF है, PDF में से पढ़ लो, क्या दिक्कत है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती तो, ठीक है। और बाकी मैं तो हुई हूँ, मुझे बता देना कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नाम से समझ में आ रहा होगा ADR, मतलब कि कोर्ट से इतर, कोर्ट्स के अलावा कुछ और ऐसे मैकेनिज्म बनाए गए हैं जिनसे डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जा सकता है। तो पहली बात तो 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के कौन का होता है, एक तो आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर आप लोगों के बीच में बैठेगा, दोनों पार्टीज को बिठाएगा और दोनों की बात सुनेगा, उसके बाद में दोनों में आर्बिट्रेट करने की ट्राई करेगा, ठीक है। उसके बाद में है मीडिएशन, मीडिएशन, मीडिएशन में क्या है, फ्लेक्सिबल नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है वेयर टू न्यूट्रल पार्टीज फैसिलिटेट डिस्कशन। इसमें कोई आर्बिट्रेटर नहीं होता, बीच में न्यूट्रल पर्सन नहीं होता, दोनों ही पार्टी आपस में बैठ के बात करती है, ठीक है। 3 कंसिलिएशन, इसमें फिर न्यूट्रल बंदा आ जाता है कंसिलिएशन करवाने के लिए, कंसिलिएशन दोनों पार्टी को मनाने के लिए, एक पर्टिकुलर बात पर राजी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगी नेगोशिएशन,
पार्टीज एंड देयर काउंसिल्स कम्युनिकेट डायरेक्टली टू रीच ऑन एग्रीमेंट विदाउट अ न्यूट्रल। ठीक है, 5 हो जाएगा कोलैबोरेटिव लॉ। इसके अंदर क्या होता है, पार्टीज एंड देयर अटॉर्नीज एग्री टू वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व इश्यूज विदाउट लिटिगेशन। मतलब कि पार्टीज के वकील आपस में बात करते हैं और बिना कोर्ट में केस फाइल किए हुए आपस में डिस्कस करके मामले को तुरंत निपटा देते हैं। ठीक है, की फ्रेमवर्क फॉर दी आर्बिट्रेशन डोमेस्टिक लॉ में अगर अपन फ्रेमवर्क की बात करते हैं इंडिया के अंदर इन आर्बिट्रेशन या फिर एडीआर्स के लिए कुछ लॉज हैं, तो वो लॉज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसके लिए लॉज है, फर्स्ट वाला बात करते हैं अपन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कौन सी साल का है, 1996 का, 1996। दिस इज द कोर लॉ फॉर आर्बिट्रेशन इन इंडिया एंड बेस्ड ऑन द यूनिलैटरल मॉडल ऑफ लॉ। जो यूनाइटेड नेशंस का यूनिलैटरल लॉ है उसके मॉडल के बेस पे है यूनिलैटरल मॉडल लॉ। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स इंडिया के अंदर इंक्लूड करते हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एंड इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, ये कुछ चीजें हैं। ग्लोबल बॉडीज ऑफ इंटरेस्टेड इंडिया इज ए पार्टी टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए 1899 एंड अदर्स टू ग्लोबल मॉडल्स। ठीक है, प्रमोटिंग मीडिएशन इन इंडिया, मीडिएशन एक्ट 2023 था। फिर उसके बाद में सेक्टर स्पेसिफिक लॉज बनाए गए हैं मीडिएशन के अंदर, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशंस है। तो उसके अंदर क्या होता है, फ्रॉम इंडियाज कमिटमेंट टू इंटरनेशनल मीडिएशन एंड सेटलमेंट स्टैंडर्ड्स, ये सब चीजें हैं। आर्बिट्रेशन पता होगा, मीडिएशन पता होगा, कंसिलिएशन पता होगा, नेगोशिएशन पता होगा, कोलैबोरेटिव लॉज आप लोगों को पता होगा। पता है तो इन सब चीज़ों को पढ़ लेना। और अगर इनको डिटेल्स में पढ़ना है तो पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। एक बार मुझसे बोल देना कमेंट सेक्शन वगैरह में, तभी प्रोवाइड करूंगा। ऐसे प्रोवाइड करने का कोई फायदा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं तो क्या फायदा। अब क्या है कि भैया कोर्ट्स पावर टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स। क्या कोर्ट अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू कुछ अवार्ड या फिर कुछ डिसीजन में बनाया गया है तो उसको क्या मॉडिफाई कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट कोर्ट्स हैव लिमिटेड पावर टू मॉडिफाई आर्बिट्रल लॉज, कि सुप्रीम कोर्ट कर तो सकता है लेकिन उनके पास लिमिटेड पावर्स हैं इन चीज़ों को लेके। एंड इफ देयर इज ए लिमिटेड पावर्स रिलेटेड टू दी दीज थिंग्स, ये लाइन कैसे खींच जाती है यार, समझ में नहीं आता कभी कभी तो। ठीक है, तो मतलब कि लिमिटेड पावर तो है सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज़ को लिए कि भैया वो मॉडल आर्बिट्री लॉज के अंदर कुछ वर्डिक्ट दिया गया है तो उनको मॉडिफाई कर सकती है। तो इस ये कौन से केस में कहा गया था, गायत्री बालास्वामी वर्सेस आईएसजी नेवासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बस इतना ही बहुत है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना। एंड लोक अदालत, जो केरला बिकेम फर्स्ट, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं, पर नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लोक अदालत, अब केरला क्या बना फर्स्ट टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस। तो केरला फर्स्ट स्टेट ऐसा जिसने क्या किया, ऑनलाइन लोक अदालत सर्विस लॉन्च की है, ऑनलाइन लोक अदालत सर्विस। ऐसा करने वाला केरला ही पहला स्टेट है। ठीक है, अब लोक अदालत क्या है, दैट मीन्स पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर ही आता है और इसको लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 के तहत ही स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया है। 1987 कौन सा एक्ट है, LSA एक्ट, वही जिसके तहत नालसा बॉडीज बनाई गई है। ठीक है, एंड 2002 एक्ट वाज अमेंडेड टू एस्टैब्लिश परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज व्हिच आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, मतलब कि परमानेंट लोक अदालत बनाने के लिए 2002 में इसका अमेंडमेंट किया गया था। तो परमानेंट भी होती है लोक अदालत, ये ध्यान रखना। अब लोक अदालत के अंदर क्या होता है कि भैया अगर लोक अदालत ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो फाइनल होगा एंड बाइंडिंग होगा, उसके बेसिस पर कोई अपील नहीं की जा सकती आगे की कोर्ट्स में। ठीक है,
एंड केस रेफर्स टू दी अदालत. लोक अदालत इंक्लूड्स एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, एनी डिस्प्यूट विच हैज नॉट बीन brought before any court and is likely to file before court. नेचर ऑफ केसेस अंडरटेकन इंक्लूड्स मैट्रिमोनियल्स. किस तरह के केसेस इंक्लूड किया जा सकता है इसमें? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. भाई शादी वाले मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. मैट्रिमोनियल्स के साथ साथ कौन सा है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. प्रॉपर्टी के साथ में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, एंड उसके बाद में लैंड एक्विजिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इसमें क्या है, आप लोग को एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा. कौन सा फैक्ट याद रखना पड़ेगा? एक मैं बताता हूँ कौन सा फैक्ट याद करना पड़ेगा. वो तो याद करना ही पड़ेगा. यहाँ पे कलर चेंज करते हैं. कौन सा है ये? कि सबसे पहले लोक अदालत कहाँ पे हेल्ड हुई थी? यह है जूनागढ़. जूनागढ़ गुजरात. और कब हुई थी ये भी लिख लेते हैं. 1982 में फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड जूनागढ़ गुजरात 1982. ठीक है. अब कुछ रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों से. इन डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर. तो कई बार क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर्स के तो आए ही नहीं है. शायद मैंने पीवाईक्यू पढ़ा है, बट अगर आ जाता है इन केस बिकॉज इट इज इन द न्यूज, यू हैव टू रिमेंबर डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर. यूपीएससी नहीं पूछती तो कोई और एग्जाम तो पूछती है. क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? क्या तुम किसी स्टेट पीसीएस की भी तो तैयारी कर रहे होंगे ना. डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या है? पहले तो इसका मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेटिव डिग्री है, वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती. क्या हो गया? It applies to irrespective of whether the appellate court has affirmed, modified or reversed the decree of the trial court. It means that offer a higher court gives government नहीं court gives its verdict. ठीक है. The lower court court's decision becomes parts of that ruling. And is no longer treated as a stand-alone judgment. Purpose and benefits क्या होगा इसका? Maintenance of the decorum of the hierarchy of courts and tribunals ensures finality in judicial decisions. In state of Madras versus Madurai Mills Company Limited, Supreme Court held that the doctrine of merger applies depending on the nature of appellate or revisional order and the scope of the statutory provisions granting such jurisdictions. ठीक है. And zero FIR. मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का कहना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक से ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकती जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या किसी कोर्ट के द्वारा दी गई है. ठीक है. यही है इसका डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर. दोनों को मर्जर कर दो, एक ही हो जाएगी. एमएचएस इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C नाम सुना होगा. इसके बारे में पढ़ लेना एक बार. क्या कह रहा है? हैज इंट्रोड्यूस न्यू जीरो FIR इनिशिएटिव्स. ऐसा नहीं है कि जीरो FIR पहले भी न्यूज बनाई थी, बहुत बार न्यूज रही, लेकिन अभी क्या हुआ, साइबर क्राइम पोर्टल ने
न्यू जीरो एफआईआर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। क्यों किया है? क्योंकि यार बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, इतने सारे बढ़ रहे हैं, कोई भी साइबर फ्रॉड कर रहा है आज के ज़माने में, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। तो क्या हुआ कि जो साइबर पोर्टल्स पे कंप्लेंट्स जाती है वो सिर्फ कंप्लेंट्स ही रहती थी, वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती थी। अगर वो एफआईआर में कन्वर्ट्स ही नहीं होती तो उन पर ढंग अच्छी तरीके से लीगल एक्शन नहीं हो पाता था, और जो साइबर फ्रॉड्स है इसी लूप होल्स का इस्तेमाल करके आज तक बचते आ रहे थे। तो क्या हुआ, आई4सी ने क्या किया, पायलट बेसिस पे, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ पे लॉन्च किया सबसे पहले इसको? दिल्ली में। दिल्ली में लॉन्च कर दिया, ठीक है। एम क्या है इसका? रिपोर्टिंग प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू साइबर फाइनेंशियल क्राइम। अगर कोई भी साइबर फाइनेंशियल क्राइम रिपोर्ट हुआ है साइबर क्राइम पोर्टल के अंदर, कंप्लेंट की गई है, तो वो कंप्लेंट ऑटोमेटिक एफआईआर में ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब कि उसके लिए किसी और प्रकार का एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो साइबर फाइनेंशियल क्राइम होना चाहिए। और इसके लिए थ्रेशोल्ड लगा है, लिमिट 10 लाख। मेड टू नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट्स पोर्टल और 1930 element will automatically lead to registration of a zero FIR with a e-crime police station of Delhi, ठीक है। दिस विल बी इमीडिएटली रूटेड टू द टेरिटोरियल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। और जैसे ही आपने कंप्लेंट की, वो कंप्लेंट ऑटोमेटिक जीरो एफआईआर में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगी। जीरो एफआईआर में कंप्लीट होने के बाद में जो आपका लोकल एरिया का साइबर पुलिस स्टेशन है वो उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। उसके अंदर जाने के बाद में पुलिस को डेफिनेटली एक्शन लेना पड़ेगा विद इन 3 days एंड गेट्स द जीरो एफआईआर कन्वर्टेड इनटू अ रेगुलर एफआईआर। उसके बाद में क्या होगा, पुलिस कंप्लेंट्स कैन विजिट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन विद इन 3 days एंड गेट द जीरो एफआईआर कन्वर्टेड इनटू अ रेगुलर एफआईआर। समझ में आ गया? जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि अपन जैसे, मैं जयपुर में हूँ और मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कहाँ पे, मनाली में, और मैंने एफआईआर लिखवाई जयपुर में, जयपुर पुलिस स्टेशन में। तो जीरो एफआईआर इसी को बोलते हैं, क्योंकि जिस जगह पे इंसिडेंट, कुछ भी एक्सीडेंट होता है, वो रिपोर्ट कुछ दूसरे स्टेशन पे जाकर अपन करते हैं तो उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। फिर जयपुर पुलिस उस एफआईआर को मनाली के पुलिस स्टेशन के पास भेज देगी, वहां से जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह है वहीं से ही होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, जीरो एफआईआर इज द मोड ऑफ लॉगिंग एफआईआर इन एनी पुलिस स्टेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस कमिटेड इन दैट एरिया और एनी अदर एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन। मतलब कि कांड कहीं पर भी हुआ हो। आसाराम का पता तुम सबको, आसाराम का जो रेप का केस लगा था उनके ऊपर, तो एफआईआर कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी एफआईआर। और उन्होंने कांड कहाँ पे किया था? राजस्थान में किया था। तो कोर्ट का केस कहाँ पे चला था? जोधपुर में चला था। एफआईआर हुई दिल्ली में। दिल्ली में एफआईआर होने के बाद में, जीरो एफआईआर होने के बाद में, उस टाइम पे आसाराम कहाँ था? मध्य प्रदेश में। तो अरेस्ट किसने किया था? जोधपुर पुलिस पुलिस के साथ मिलकर उसको, मध्य प्रदेश पुलिस ने। फिर मध्य प्रदेश पुलिस जोधपुर पुलिस के साथ उसको जोधपुर कोर्ट में लेके आई थी, फिर वहां पर उसका ट्रायल हुआ था, ठीक है। जीरो एफआईआर इन द मोड ऑफ लॉगिंग, समझ में आ गया? द प्रोविजन फॉर जीरो एफआईआर इज अंडर सेक्शन 131 क्लोज 1 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर है। कौन से है? BNSS के कौन से सेक्शन में? 173 क्लोज 1, जीरो एफआईआर। समझ में आ गई? एंड जस्टिस वर्मा's कमिटीज रिकमेंडेशन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द 2012 निर्भया केस। निर्भया केस पता ही होगा सबको, दिल्ली का। और उसके बाद में ही जो क्या कहते हैं, जो POS है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आया था 2013 में। उससे पहले बस पार्लियामेंट्स वगैरह, पार्लियामेंटेरियंस लैप्स हो रहे थे सारे केसेस। लेकिन जैसे ही जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी, उन्होंने रिकमेंड किया पॉज जैसे एक्ट को लाने के लिए, साथ में जीरो एफआईआर जैसे इनिशिएटिव को। तो उसके बाद में पॉज एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, उसके बाद में जीरो एफआईआर का इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। जस्टिस वर्मा कमेटी याद रखना, ठीक है। So, whatever in the news related to judiciary we have discussed till here, and the next topic will be of इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी चीजें न्यूज में थी, जितने भी चीजें लाइक बिहार का एसआईआर हो गया, बिहार का एसआईआर होने से बाद में केरला कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्रॉड ऑन वोट्स का
मिस्टर राहुल गांधी के द्वारा एलिगेशन एक्यूजेशन लगाया गया था, वो सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फॉर्म 4A क्या है, फॉर्म 6 क्या है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे इलेक्शन के अंदर, ठीक है। एंड सबसे पहला तो अपन टॉपिक शुरू करते हैं इलेक्शन। अब 1 मिनट बस। इलेक्शन, ठीक है। अब इलेक्शन में क्या पढ़ेंगे अपन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटेल्स में पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल के सेक्शन में जाना, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर्स आप लोग ले सकते हो एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आपने उस लेक्चर से पढ़ लिया तो आप कभी भी किसी भी चीज़ को, या तो फिर जो इलेक्शन कमीशन इंडिया की जो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, वो साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, कंडीशंस, सर्विस एंड अपॉइंटमेंट्स एक्ट 2023 और जो अरुण बनवाल केस था 2023 का, उन सब के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है और साथ में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए गए हैं ताकि आपकी एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए। तो जाके ले लो अच्छे से। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में क्या था इलेक्शन से रिलेटेड, वो तो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले ही हैं, बट साथ में उसको भी ले लेना। अगर वो क्लास तुमने ले ली तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी चीजें तुम कभी भी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो अपन जो कि आज अपना नया टॉपिक होने वाला है। So let's discuss the Election Commission of India. Okay. I hope you all understanding all the key topics of the PT 365. ठीक है. Elections. Now, before entering to the topic of the election, we will discuss some Election Commission of India. Election Commission of India. क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि आर्टिकल 324 क्लोज 1 एस्टेब्लिशेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अपन देख लेते हैं। इधर देखो, ठीक है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 324 क्लोज 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 324 क्लोज 1 मैंडेट देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसका? सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल। किन किन का सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन का। आर्टिकल 324 क्लोज 1। नाउ आर्टिकल 324 क्लोज 2 आर्टिकल क्या कहता है? देयर शैल बी ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जब लॉ बन जाएगा उसके बाद में प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनने के बाद। आर्टिकल 324 क्लोज 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही एक्ट करेगा एज ए चेयरपर्सन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 क्लोज 4 रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। किसके रिकमेंडेशन पर? इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रीजनल कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करेगा। आर्टिकल 324 क्लॉज 5 रिमूवल की बात करता है इलेक्शन कमिश्नर्स की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को किस तरह हटाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जज के जो ग्राउंड्स हैं और जो मैनर है, तरीका है उनको हटाने का, उसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जाएगा। एंड जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको सिर्फ सीईसी की रिकमेंडेशन के आधार पर ही हटाया जाएगा। आर्टिकल 324 क्लोज 6 स्टाफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का स्टाफ पता नहीं है। जब इलेक्शंस होते हैं तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? प्रेसिडेंट से, गवर्नर से रिक्वेस्ट करता है स्टाफ के लिए, तब जाके गवर्नर एंड प्रेसिडेंट उसको प्रोवाइड करवाते हैं स्टाफ। ठीक है। आर्टिकल 325 क्या कहता है? देयर शैल बी अ यूनिवर्सल इलेक्टोरल रोल पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिर्फ एक ही इलेक्टोरल रोल होगा और किसी भी सिटीजन्स को उस इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं किया जा सकता इन 4 ग्राउंड्स के आधार पर। पहला है रिलीजन,
रेस, कास्ट, सेक्स, ये 4 ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर किसी भी सिटीजन को इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं निकाला जा सकता अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 क्या कहता है कि देयर शैल बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि एक पर्टिकुलर एज से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर रखा है 18 ईयर्स, और 18 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है। एंड कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर इलेक्शन कमीशन सिटीजन्स को इलेक्टोरल रोल से बाहर निकाल सकता है। वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जो 326 आर्टिकल्स में दे रखा है? अनसाउंड माइंड्स, नॉन रेजिडेंस, क्राइम, इलीगल प्रैक्टिस, ये 4 ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर किसी भी व्यक्ति का वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है। आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को पावर देता है किस चीज के बारे में? डिलिमिटेशन और इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड लॉज बनाने के लिए। और 328 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पावर देता है सेम चीजों के ऊपर लॉ बनाने का, जब सेंट्रल लॉ यानी पार्लियामेंट के द्वारा उन चीजों के ऊपर किसी भी तरह का कोई लॉ नहीं बनाया गया हो तब। आर्टिकल 329 क्या करता है? कोर्ट्स को प्रतिबंधित करता है दखल देने के लिए डिलिमिटेशन और इलेक्टोरल रोल के मामले में। और साथ में किसी भी चुनाव को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पिटीशन से ही चैलेंज किया जा सकता है, यह आर्टिकल 329 बताता है। हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जो कि तुम्हें याद रखना है। ठीक है। और सबसे पहला अगर अपन पीटी 365 में देखते हैं तो ये भी बॉक्स बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है, तो ये सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली। ठीक है। अब क्या है कि फंक्शंस क्या है? सुपरवाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। तो सारी चीजें अपन ने देख ली। ईसीआई के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो 324 से लेके 329 है, सारे आर्टिकल्स याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है। जो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव है, स्वीप इनिशिएटिव हो गया। स्वीप इनिशिएटिव क्या होता है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन 2009 इनहांसेस वोटर पार्टिसिपेशन। ठीक है। एंड वही डुप्लीकेट आईडी वगैरह चेक करने के लिए, तो स्वीप याद रख लेना। और उसके बाद में इससे रिलेटेड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है, उनको कर लेना। तो पहला जुडिशियल प्रोनाउंस क्या है? एडीआर वर्सेस यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया, कब हुआ था? 2002 में। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस 2000। इन्होंने क्या कहा था कि मैंडेटेड कैंडिडेट टू डिस्क्लोज क्रिमिनल, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल डिटेल्स इनहांसिंग वोटर ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि क्या होगा इस केस में? कहा था कैंडिडेट जो भी इलेक्शन यानी कि चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, नॉमिनेशन भरा है उसने, उसको अपनी क्रिमिनल डिटेल्स देनी पड़ेगी कि कौन कौन से केस उनके ऊपर चल रहे हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स देना पड़ेगा वोटर्स को, एंड फाइनेंशियल डिटेल्स प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ये सारी डिटेल्स इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्रोवाइड करने के लिए टू द कैंडिडेट्स। ओके। एंड एक और है पीयूसीएल, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके अंदर क्या है? नोटा का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। नोटा जो ईवीएम का लास्ट का बटन होता है वो इसी केस के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा। अब एडीआर का एक और हुआ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक और केस है जो कि 2024 का है, जो किस चीज से रिलेटेड है? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द एससी। नाउ वी हैव डिस्कस्ड वट एवर इन द न्यूज। इलेक्शन कमीशन के अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिए एंड जो भी न्यूज में थे करंट चीजें वो देख ली। साथ में अब बचा गया अपना रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, RUPP। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर दे रखा है, तो वो चीजें पढ़ेंगे अपन कि इसके अंदर है क्या। ठीक। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज क्या होती है? या तो उनको जो नेशनल पार्टीज है और साथ में स्टेट पार्टीज है उनकी रिकग्नाइज नहीं मिली होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, तो रजिस्टर्ड होती ही है।
ठीक है। तो क्या होता है देखो, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, इनको रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, और साथ में जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है एज ए स्टेट और नेशनल पार्टी, उसे रिकॉग्निशन मिली होती है। जैसे कांग्रेस है नेशनल पार्टी है, बीजेपी नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी पहले स्टेट पार्टी थी, अब नेशनल पार्टी होगी गुजरात इलेक्शन के बाद से। और जो रजिस्टर्ड ही है केवल उनको इलेक्शन सिंबल्स में प्रेफरेंस इन मैटर्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स में दिया जा सकता है। बट यूज जो नेशनल और स्टेट पार्टीज होती है उनके पास पहले से ही रिजर्व्ड इलेक्शन सिंबल्स होते हैं, तो रिजर्व्ड इलेक्शन सिंबल्स ही यूज करती है। जैसे नेशनल एनआईसी एएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमेशा ये रहता है, बीजेपी का कमल का फूल हमेशा रहता है, चेंज नहीं होता, आम आदमी पार्टी का झाड़ू हमेशा रहता है, चेंज नहीं होता, मतलब कि उनके सिंबल्स रिजर्व्ड है, वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इस वजह से। और जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको प्रेफरेंस दी जाती है इलेक्शन सिंबल्स के अंदर, लेकिन उनके पास कोई रिजर्व्ड सिंबल नहीं होता, ये ध्यान रखना। और जो इलेक्शन पक्ष है वो सारी चीजें, मतलब कि जो अनरजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं रिकॉग्नाइज्ड, उसमें 20 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं, 20 मतलब 20 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें 40 मतलब 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। जो स्टार कैंपेनर्स रहते हैं उसमें इलेक्शन चुनाव के अंदर इनमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको जो ज़्यादा कर सकते हैं बाकी अदर कैंपेनर्स की तुलना में, ठीक है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जो कि बिहार में चल रहा था और अब नेशन वाइड होने जा रहा है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एसआईआर होता क्या है बेसिकली? एसआईआर कुछ भी नहीं है, इलेक्टोरल रोल्स का अपडेशन है। इलेक्टोरल रोल का अपडेशन किस किस बेस पे होएगा कि कब कौन सा व्यक्ति उस रेजिडेंस के बेस पे, कि व्यक्ति अभी भी उसी स्थान पर रह रहा है या फिर उसका रेजिडेंस चेंज हो गया। अगर रेजिडेंस चेंज हो गया तो उस वहाँ उसको उस इलेक्टोरल रोल से हटा के दूसरी जगह पे ऐड किया जाएगा। ये सारे इलेक्टोरल रोल्स की प्रोसेस है। तो 2023 एक्ट प्रोवाइड्स मोर ऑटोनॉमी टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अंडर द एक्ट, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। आर्टिकल 124 क्लोज 4 किसके बारे में बात करता है? अपॉइंटमेंट्स ऑफ रीजनल कमिश्नर्स। 25 किसकी बात करता है? रिमूवल किसकी बात करता है, ठीक है। एसआईआर के बाद में एसआईआर एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अपन ने अभी 325 आर्टिकल पढ़ा। 325 आर्टिकल्स में क्या बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये 4 ग्राउंड के आधार पर किसी को भी इलेक्टर रोल से बाहर नहीं निकाल सकता, तो निकाल भी नहीं सकता। और बिहार में हालांकि कुछ एक्यूजेशंस लगे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, बट वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो नहीं निकाला हुआ डेफिनेटली, ठीक है। एंड उसके बाद में अपन ने आर्टिकल 26 पढ़ा। इन बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टर रोल से किसी भी सिटीजन को बाहर कर सकता है। नॉन रेजिडेंस का मतलब है जैसे मान लें मैं जयपुर में, मेरी इलेक्टर रोल्स में मेरा नाम है, अब मैं जयपुर में नहीं रहता, पिछले 10 सालों से मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा नाम दिल्ली के इलेक्टर रोल्स में भी आ गया और जयपुर के में भी है, तो डुप्लीकेशन आ गया ना। तो इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में क्या होगा, मेरे को जयपुर से डिलीट कर देंगे और दिल्ली वाला ही कंटिन्यू किया जाएगा। समझ में आ गई बात? इसलिए 325 और 326 आर्टिकल्स याद रखना। और साथ में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 19 स्टिपुलेट्स दैट मिनिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए वोटर एज 18 ईयर्स, ठीक है। 18 ईयर्स की जो एज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियरली लिखी हुई है। पहली बात तो ये चीज भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। समझ में आई बात? 18 years of age written in the constitution under article 325 क्लियरली, 325वें आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया एज जो है 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। कौन से आर्टिकल में? 325 में लिखा हुआ है। साथ में सेक्शन 19 में भी लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ में सेक्शन 19 एंड आर्टिकल 25 में क्लियरली मेंशन्ड है। किसका मेंशन था? 18 ईयर्स ऑफ एज का। आर्टिकल 26 में, नॉट 25, ठीक है। याद रखना है चीजें। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ अदर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दी न्यूज। एक तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का। देख अपॉइंटमेंट सिंपल सी बात है, सीईसी का ये एक्ट में है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल।
तो अनूप बंडवाल केस हुआ था। अनूप बंडवाल केस से पहले, अनूप बंडवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, एक कमेटी होगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए अपॉइंटमेंट करेगी। तो उस कमेटी में कौन कौन होगा, एक तो पीएम होगा, एक एलओपी होगा लोकसभा का, प्लस एक सीजीए होगा। ये कमेटी अपॉइंटमेंट करेगी सीईसी का, जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं लाती। तो क्या करा पार्लियामेंट ने, सीईसी अदर ईसी अपॉइंटमेंट कंडीशन सर्विसेज एक्ट ले आई 2023 में। तो अब क्या हुआ कि पहले तो सर्च कमेटी होगी, सर्च कमेटी के बाद क्या होगा, सर्च कमेटी में क्या होगा, हेड किया जाएगा लॉ मिनिस्टर के थ्रू। लॉ मिनिस्टर को कौन, 2 सेक्रेटरी असिस्ट करेंगे, 2 सेक्रेटरी असिस्ट करेंगे, जो कि कैबिनेट वो सेक्रेटरी असिस्ट करेंगे, जो क्या करेंगे 5 कैंडिडेट की एक लिस्ट तैयार करेंगे। 5 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार करने के बाद में, जो कि ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट्स एक्ट के 2023 के बारे में, उसके बाद में क्या होगा, सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी क्या काम करेगी, सिलेक्शन कमेटी सेक्शन 7 में बात करती है। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, एक तो पीएम होगा, प्लस एक एलओपी होंगे, प्लस एक यूनियन कैबिनेट नॉमिनेटेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है ना, ये रेकमेंड करेगी। तो फाइनली किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, सीसी अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो सीईसी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। सेक्शन 4 में इस एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट किससे करेगा, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, सील के द्वारा। ठीक है, और टेन्योर क्या होगी इनकी, वही 5 ईयर्स और 65 ईयर विच एवर इज लियर, शायद देखना पड़ेगा टेन्योर क्या है इसकी। ठीक है, ये सारी चीजें 6 ईयर एंड 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर टेन्योर होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की। ठीक है, आगे बात समझ में, एंड सारी चीजें पढ़ ली अपन ऑलमोस्ट, सारी चीजें। ठीक है, आगे बात समझ में। और जो सैलरी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट रहेगी, सिंपल सी बात है, नो वरीज। और जो एसीनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो अभी इनिशिएटिव लिया गया है इसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एसीनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या कहता है भैया कि जो ECI यूज द न्यू ECNet डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग रिसेंट बाई इलेक्शंस इन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ECNet ऐप क्या है, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टाइमली वोटर टर्न आउट रिपोर्टिंग। मतलब कि वोटर टर्न आउट कितना हुआ है किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में और किसी स्टेट में, वोटर टर्न आउट को बताने के लिए एप्लीकेशन है। ठीक है, और किस कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 के तहत फॉर्म 17 है, रिपोर्ट्स पोलिंग स्टेशन वाइज वोटर टर्न आउट डिटेल्स। मतलब कि फॉर्म 17C याद रखना, बूथ वाइज ये वोट टर्न आउट की रिपोर्ट देता है, बूथ वाइज वोटर टर्न आउट डिटेल्स, वोटर टर्न आउट डिटेल्स। मतलब कि उस बूथ में अगर 1000 लोगों का इलेक्टर रोल्स के अंदर नाम है तो उसमें से कितने लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, एंड इसके जो की फीचर्स है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपडेट वोटर टर्नआउट डाटा एवरी 2 आवर्स ऑन पोलिंग डे, ओनली डेजिग्नेटेड EC ऑफिशियल्स कैन एंटर डाटा टू एंश्योर एक्यूरेसी। ठीक है, फास्टर इंडेक्स कार्ड पब्लिकेशन इन 70 आवर्स ऑफ रिजल्ट्स।
उसके बाद में पोस्टल बैलेट्स क्या है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की सर्विस दी गई है, या फिर जो गवर्नमेंट कर्मचारीज है, ताकि वो पोस्टल बैलेट्स के जरिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो क्या होता है पोस्टल बैलेट, और किस रूल्स के तहत या फिर किस एक्ट के तहत पोस्टल बैलेट का यूज कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पोस्टल बैलेट्स, ठीक है। अब पोस्टल बैलेट्स के अंदर तो क्या है, अलाउड इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कंडक्ट रूल्स ऑफ 1961 एंड आरपीए 1951 talks about it. Okay, postal ballot, three exception, polling takes place outside polling stations, it is by non EVM methodology। ठीक है, अब इसके लिए पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबिलिटी कौन कौन है, कौन कौन पोस्टल बैलेट के थ्रू पोस्ट कर सकता है। पहली बात तो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। पुलिस फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड देयर स्टेट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टेड ऑन बोर्ड, टोटल मिला के गवर्नमेंट सर्वेंट जो बाहर पोस्टेड है। ठीक है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, और स्पेशल वोटर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर हायर ऑफिसर्स, रैंकिंग डिग्निटरीज एंड देयर स्पाउसेस, ठीक है, उनके लिए। एंड एब्सेंटी वोटर्स, सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग हैं उनके लिए, पीडी वाले, ठीक है। इलेक्शन ड्यूटी पर्सनल्स के लिए, इलेक्शन ड्यूटी पर्सनल के लिए, इन सब चीजों के लिए पोस्टल बैलेट का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख रखा है, इशू ऑफ बैलेट पेपर्स, ए पोस्टल बैलेट पेपर शैल बी सेंट बाय पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग फॉर to elected together with a declaration in form 13 है, एक कवर इन फॉर्म 13 भी, ए लार्ज कवर एड्रेस टू बेसिकली टेक्निकल नॉलेज, इतनी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, तो सिंपल सी चीजें याद रखनी है। पोस्टल बैलेट क्या है, पोस्टल बैलेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन उसका उपयोग कर सकता है, और किस कहाँ से मैंडेट दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पोस्टल बैलेट के लिए। ठीक है, इतना सा याद करना है। एंड इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस में आ जाते हैं फेडरलिज्म के इशू, सेंटर स्टेट रिलेशन, इसमें मैक्सिमम आता है फेडरल इश्यूज, फेडरल इश्यूज। और अगर देर इज अ फेडरल इश्यूज, फेडरलिज्म के इश्यूज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही बहुत है, और अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टुमारो, देयर विल बी सेंटर स्टेट रिलेशंस। उसके बाद में अपन, इसके बाद में कितने बचेगा, कितने टॉपिक्स बचेंगे अपने, इसमें देख लेता हूँ एक बार मैं। उसके बाद में अपन ने देख पढ़ लिया, एक तो ये फंक्शनिंग पढ़ लिया, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट पढ़ लिया, लेजिस्लेचर पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह स्टेचुटरी बॉडीज पढ़ ली, इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, जुडिशरी वी हैव डिस्कस्ड, एंड इलेक्शंस पढ़ लिया। उसके बाद में सेंटर स्टेट रिलेशन रहेगा, और इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन या बिल्स रहेगा, और इसके बाद गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज, एंड 9 विल बी अपेंडिक्स लाइक प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर। उसके बाद में अपनी ये मैगजीन कवर हो जाएगी। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अगर आपको, और इसके बाद में अपन शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स वाली पीटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की पीटी शुरू करने के लिए आप रेडी रहना। और अगर आपको लगता है कि इस पीटी से मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊं जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, साथ में उनकी व्याख्या भी करवाऊं इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं इस पीटी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं 100, 200, 300, 400 बनाएंगे अपन, और उनको एक एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगर आपको चाहिए ये तो मैक्सिमम लाइक करना, मैक्सिमम लाइक के साथ साथ में कमेंट्स करना। ठीक है, सो दैट वी कैन प्रिपेयर होलिस्टिकली फॉर व्हाट, फॉर prelims examinations, prepare for holistically for examinations। अगर आपको लगता है कि एक दिस चैनल इज बेनिफिशियल फॉर यू, बेनिफिशियल है, तो एक काम करना आपको, पहले तो इसको सब्सक्राइब करना। क्या करना, सब्सक्राइब कर लिया।
सब्सक्राइब करने के बाद में अपने दोस्त को, फ्रेंड को रेकमेंड करना है। फ्रेंड को रेकमेंड करने के बाद में मैं एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, लिख लो इसको, dilraj@gmail.com। मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल करके बताना कि इन लेक्चर्स में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और बेस्ट चीज़ क्या है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, अगर आप फीडबैक दोगे तो आपको अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे, तो कृपया फीडबैक देने की ट्राई करें। ठीक है, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। 5 मिनट में दे दोगे, क्या दिक्कत है पूरी वीडियो लेने के बाद में। तो उसके बाद अपन आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, जय हिंद।